antennas, all of which are vulnerable to lightning strikes, which can have fatal consequences. To learn about how to deal with these hazards, I now call up on stage Professor Cornel Sanjay Srivastav sir, Chairman of CROPSI, and as well as our always supporter, our guide, our mentor. Please sir, come on stage to deliver this presentation. Alpha Tango 1, Alpha Romeo Charlie. I am privileged and honored to be here to the occasion. Respected Dr. K.J. Ramesh sir, Mrs. Ramesh, Secretary, students, and my ham radio colleagues. It's a proud privilege to be here amongst you. Rather, it has been a dream come true today when first such convention is being held here at Shantiniketan. At the very outset, I would like to express my sincere gratitude and pranam to Acharya Rabindranath Tagore, the man who gave the pride to India. I am fortunate enough to be at his abode at Shantiniketan today. I'll also come now. Though the topic has been given to me about only ham and how to protect it from earthing, I've taken the privilege of taking ham to a journey for developing a lightning resilience in the area. In fact, the way the cloud is building, already thunderstorms have started building up over the region. And by 2 to 3 p.m. we are expected to have thunderstorms here. So anyone who is here, please stay in this area. Do not go out in the open. Do not stand under a tree. Pakka makan, sabse surakshit sthan. Next. My topic is building lightning resilience to the rural India. Today, 97 to 98% people die of lightning in the rural area. And here, ham radio has played the most important role, especially in West Bengal. I came in contact with Neil somewhere around Ganga Sagar Mela, and that was the time I was given charge by the government of West Bengal to design the Mela, because there was a big tussle between the Prime Minister and the Chief Minister over deaths. And I worked. Ganga Sagar, there was no communication, there was no electricity, no power. It was the ham radio which worked. And I must tell you, Ganga Sagar is the place where in our Hindu religion we bring our parents, and parents prefer to be there to end their life and live there. But on the other side, flip side of it is, a lot of people by default leave their parents. And when we started off in 2018 at Ganga Sagar, Diamond Harbour, we had more than 7,000 unattended parents. And courtesy ham radio, today those homes are zero. We used our technology, Aadhaar card, AI, and we have been able to send all those parents back home. And you must be hearing a lot of news, people keep publicizing. Ham radio, courtesy this, we found so and so relative after 36 years, after 40 years.
So that's the power of ham radio. I draw strength to ham radio right from my childhood. My father was a radio hobbyist, and he would sit, design a radio, and as a child I'll go on roof, put the antenna, and he in Ranchi also created a Betar club, and the Betar club still lives there. So right from childhood, this is something which is a passionate hobby to me also. And of course, in army we carried out. When I became advisor to Jharkhand government, first thing I did, I purchased a complete ham radio set for police and disaster management. And that is functional today. And wherever I go, I always say, when everything fails, like Brigadier Jai was telling, what functions is ham. So it has tremendous application. Today, lightning is a disaster. I'll take the journey to through this presentation. You will see what functions is only ham radio. And it has tremendous power. Next please. We have a Lightning Resilient India campaign, and entire team of Neil, Shani, Jeet, Pauline, all are there in field during the season. And they have taken due permission to host the session now since almost monsoon is over here. So that's their sensitivity in saving life. You go to Pathak Pratima, you go to Bokhali, they are the real champions who are saving life. Next please. So, whether today, I will also apprise you with the technology that India has developed. And there is nothing which is undetected, there is nothing which cannot be forecasted, and we have a proper response system. ये भारतीय मौसम विज्ञान का ऐप है मौसम. आप लोग गूगल में देखते होंगे, एक्यूवेदर में देखते होंगे. ये ऐप है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जितने सैटेलाइट हैं, जितने रडार हैं, वेदर स्टेशन हैं, सारे की इनपुट इस पे आती है और सबसे ऑथेंटिक वेदर इस पे आता है. काइंडली यूज इट. ये आपके पैसे से आपके लिए बनाया गया है, एंड दिस इज द मोस्ट रिलायबल ऐप. सो प्लीज यूज दिस. मौसम, आज का मौसम जो मैंने 8:42 मॉर्निंग में लिया है, 31.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, फोरकास्ट है, एंड लाइटनिंग का फोरकास्ट है 2 से 4 बजे के बीच में. जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, ये फोरकास्ट का टाइम शॉर्ट होता जाता है और वो एक्यूरेट होता है, और आप जहां खड़े होंगे वहां पे आपको फोरकास्ट मिलेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, आप लोग सब इसका इस्तेमाल जरूर किया कीजिए. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. आज का मौसम सवेरे 8 बजे से लेकर शाम तक का मैंने दिया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया 2 से 4 बजे तक लाइटनिंग होने की संभावना है. तो आप सबों को पेड़ के नीचे नहीं जाना है, पक्के मकान के अंदर रहना है, या ऐसे ग्रोव के अंदर रहना है जहाँ पे लाइटनिंग का इम्पैक्ट ना हो, और कोई टॉल ऑब्जेक्ट के नीचे नहीं खड़ा रहना है. जो लोग फुटबॉल वगैरह खेलेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आज जब पानी बरसेगा तो फुटबॉल मत खेलिए. नेक्स्ट. ये 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का वेदर फोरकास्ट है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये टर्मिनल मानसून का टाइम है, और साथ साथ ये जो समय आ रहा है, अभी लो प्रेशर बे ऑफ बंगाल में डेवलप हो रहा है, उसकी संभावना है. तो ये थोड़ा वेदर में अनस्टेबिलिटी रहता है, और इस वक्त में सबसे ज्यादा नुकसान होने का संभावना रहता है. तो आप जरूर मौसम ऐप को देखिए. एक हमारा लाइटनिंग के लिए स्पेशल ऐप है दामिनी, उसको जरूर देखिए और उसके हिसाब से काम कीजिए. किसानों के लिए ऐप बनाया है मेघदूत, क्योंकि वो खेतों में होते हैं, तो खेतों में उनको किस वक्त में खेती करना है, क्या खेती करना है, क्या खतरा है, वो उस ऐप से पता चलता है. नेक्स्ट प्लीज. Regarding our organization, Climate Resilient Observing System Promotion Council, this organization is courtesy Dr. K.J. Ramesh sir. ये उनका विजन है, हम लोगों ने इसे बनाया, और जितना ऑब्जर्विंग सिस्टम है सरकार का, या जो भी ऑब्जर्विंग सिस्टम हमें दूसरे देशों से भी मिलते हैं, उनसे जो जानकारी होती है वो आम लोगों की जिंदगी को
बेहतर बनाने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हमारा 2 पॉइंट अप्रोच है लाइटनिंग इंडिया कैंपेन के लिए, जो आपको पिक में दिखाई दे रहा है। हम साइंटिफिक सोल्यूशन बताते हैं कि आप जान कैसे बचा सकते हैं। हम आपको अर्ली वार्निंग देते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना ये बताते हैं, और कैसे किसी एरिया पे लाइटिंग अरेस्टर कंडक्टर लगा के उसको लाइटिंग से बना सकते हैं। वेस्ट बंगाल में जब सुरेश कुमार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट थे, तो हम लोगों ने जितना साइक्लोन शेल्टर है उसको लाइटनिंग सेफ बनाया है। तो अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो साइक्लोन शेल्टर आपको नजर आएगा, जो आज स्कूल के रूप में है या कम्युनिटी हॉल के रूप में है, आप उसमें जाके शरण ले सकते हैं। दूसरा जो ग्रीन में दिख रहा है, ये सारा कुछ जलवायु परिवर्तन जो आप बोलते हैं, ये उसका परिणाम है। जितनी गर्मी होगी उतनी ज्यादा लाइटनिंग होगी, ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो बहुत जरूरी है कि हम कंक्रीटाइजेशन कम करें, इकोलॉजिकल सीक्रेटनेस लाइफस्टाइल लें, लाइफ मिशन लगाए और उसके साथ जिंदगी बढ़ाएं। नेक्स्ट कमिंग टू लाइटनिंग। जब ये बादल के बीच में होते हैं, जैसे अगर आप बाहर देखेंगे तो काले बादल छाए हुए हैं। ये काले बादल का रंग इसलिए बदलता है कि ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है, और जब वो आसमान में होते हैं उसको इंटर क्लाउड या इंटर क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं, और जब आसमान से नीचे आते हैं तो उनको क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग कहते हैं। हमारे लिए जो खतरनाक है वो क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग है, जिससे कि हमें करंट लगता है और हमारा इलेक्ट्रोक्यूशन होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बिजली का करंट। और ये जो सारी प्रक्रिया है लाइटनिंग बनने की, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट ही बनता है, और वो इलेक्ट्रिक करंट से आपको बचना है। नेक्स्ट, हम लोग क्रॉप्सी इंडिया में या दुनिया में जाना जाता है मैपिंग द लाइटनिंग। देश में जितने स्ट्राइक होते हैं या आसमान में बनते हैं उसको हम मैप करते हैं, उसको पूरा रिपोर्ट निकालते हैं, और पिछले 4 साल से हम लोग लगातार रिपोर्ट निकाल रहे हैं। 5 रिपोर्ट हम लोग निकाल चुके हैं, और पूरे क्लाइमेटोलॉजी डेवलप कर रहे हैं लाइटनिंग पर। आपको जान के हैरानी होगी कि ओवरऑल पिछले 4 साल में इंडिया में लाइटनिंग 46% बढ़ा है। हमारा जो रिसर्च है वो कहता है 1 डिग्री तापमान बढ़ने पे 12% लाइटनिंग बढ़ता है। 46% लाइटनिंग बढ़ने का मतलब है हमारा तापमान 4 डिग्री लगभग बढ़ गया है। और जो बड़ा बड़ा शहर है उसका तापमान ज्यादा बढ़ा है, तो वहाँ लाइटनिंग ज्यादा हो रही, और जो जहाँ कम है वहाँ पे लाइटनिंग घट भी रही है। तो जिन लोगों ने क्लाइमेट एक्शन का काम किया है, जैसे उड़ीसा में कुछ इलाके हैं वहाँ लाइटनिंग घट रही है, लेकिन जैसे पश्चिम बंगाल है जिस तरीके की कंक्रीटाइजेशन हो रही है वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप क्लाइमेट एक्शन के लिए काम नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जलवायु परिवर्तन के लिए तभी ठीक होगा जब आप वातावरण, पर्यावरण, मौसम को ठीक रखेंगे। नेक्स्ट, ये पूरे इंडिया का लाइटिंग पैटर्न है। अगर आप देखें तो ईस्टर्न इंडिया और स्पेशली जहां हम खड़े हैं, ये लाइटनिंग का हॉट रॉड है। सबसे ज्यादा लाइटनिंग यहाँ होती है और सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ होता है। अनफॉर्चुनेटली सरकार की ओर से अभी कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ बिल्कुल कार्रवाई नहीं होती। मैं साइंटिफिक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। नॉट ओनली दिस स्टेट, बहुत स्टेट है जहाँ पे लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे और नुकसान हो रहा है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो। जिन जिन राज्यों ने ध्यान नहीं दिया वहां पे नुकसान बढ़ रहा है। आप लोग को मैं दिखाऊंगा बंगाल में कैसे बढ़ रहा है, और इसके लिए सरकार को नहीं आपको काम करना है। जो नया आप कंक्रीट का घर बनाते हैं उस पर आप कंडक्टर या अरेस्टर नहीं लगाते। एक्चुअल में जरूरत नहीं लगाने की। हमारा जो सिद्धांत था, हम लोग फैराडेज केज जिसको कहते हैं, अगर आप चारों ओर लोहा का मेटल स्ट्रक्चर रखिएगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है।
तो अगर आप हाउस को फैराडे केज बना देंगे, वो ये लाइटनिंग इंडिया की रैंकिंग है, वेस्ट बंगाल का नंबर कभी 5वें 6ठे नंबर पर रहता है। इस साल अभी टॉप 8 स्टेट्स में वेस्ट बंगाल है। अभी तक वेस्ट बंगाल में 204 डेथ हमारे हिसाब से हो चुका है। नेक्स्ट, लाइटनिंग के लिए 2 चीज की जरूरत होती है। जितनी लेडीज बैठी हैं, मैडम, जब तवे पे पानी डालते हैं, गर्म तवे पे, तो क्या होता है? भाप निकलता है। वैसे ही गर्म धरती पे जब बादल आते हैं तो क्या होगा? भाप निकलेगा। भाप मतलब थंडरस्टॉर्म आएगा, और उसके बाद तो मॉनसून जब आता है तो भाप लाता है। और कब आता है? गर्मी के मौसम के बाद। तो जो इलाका गर्म होगा वहां पे ये पानी लगेगा और वहां पे लाइटिंग होगा। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जब आपको पता है कि बादल आने वाला है तो लाइटिंग होने वाली है। ठीक है, तो ये आपको घर में, आप सेटेलाइट का आजकल ओपन सोर्स पे अवेलेबल है, आप देख लीजिए कि आप अगर बाहर जा रहे हैं उस टाइम पे बादल है या नहीं, तो वो कंडीशन आपको बता देते हैं। तो कॉमन जो ऑब्जर्वेशन, उससे भी आप देख सकते हैं। काले घने बादल है, उसमें लाइटिंग होती है। जो सफेद बादल है उसमें लाइटिंग नहीं होती। बादल का रंग सफेद से काला तभी होता है जब उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा। तो ये कॉमन चीजें जो मैं बताना चाहता हूँ, जिसको आप लोग समझें और अपने लाइफ में इस्तेमाल करें और लाइफ को सुरक्षित रखें। नेक्स्ट, ये दामिनी ऐप है, ये ऐप स्टोर में अवेलेबल है। आप कहीं भी रहेंगे, ये आपको 40 किलोमीटर पहले बताएगा और आपको 2 से 3 घंटे का वार्निंग देगा लाइटनिंग के लिए, और ये भी बताएगा कि क्या करना है। तो इट इज वेरी वेरी पावरफुल ऐप। ये हमारे भारतीय मौसम विज्ञान और IITM के द्वारा बनाया गया है और ये सबको उपलब्ध है। नेक्स्ट, ये किसान के लिए है मेघदूत। इसमें सबसे अच्छी बात है क्या खेती करना, वो भी बताया गया है। और इस ऐप का खासियत है कि अगर आपके पौधे में कीड़ा लगता है, खराबी होती है, आप फोटो खींचिए, भेज दीजिए, आपको 24 घंटे के अंदर उसका इलाज का जवाब आएगा। तो ये भारतीय मौसम विज्ञान और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बनाया। नेक्स्ट, आप लोग सब गूगल वाले हैं, मैं आर्मी ऑफिसर हूं, और मैं बताऊं, जब कारगिल का लड़ाई हुआ तो हमारा जब पेट्रोलिंग पार्टी जाता था, द्रास से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, वो कहीं और पहुंच जाता था। हमारा हवाई जहाज जो बॉम्ब गिरा रहा है कहीं और गिरता था। अब तो तब हो गया जब हमारा पायलट उस पार उतर गया, नचिकेत। जानते हैं क्यों? गूगल ने ऑफसेट कर दिया सैटेलाइट। हम लोगों ने डिसाइड किया हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उस दिन से मैपल, भारत का गूगल, मैं इसको गूगल नहीं बोलूंगा, मैं मैपल बोलूंगा। ये भारत का GIS सिस्टम है, आप लोग सब इसको इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर आपका गांव का पोस्ट ऑफिस, हर डिटेल मिलेगा, और 10 मिलीमीटर रेजोल्यूशन पे आपको लाइडार का पिक्चर मिलेगा। आपको अगर एक कहीं क्रैक भी हो रहा तो वो इस पे आएगा। इतना अच्छा इसका रेजोल्यूशन। तो प्लीज यूज दिस। आज भारत का जितना भी ऐप आ रहा है वो सारा मैपल पे आ रहा है। नेक्स्ट हमारा यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम आ गया है, UPI आप लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही हमारा UHI आ गया है, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। वैसे ही हमारा ULI आ गया है। नेक्स्ट, ये लॉजिस्टिक इंटरफेस है। तो इंडिया में डिजिटल मिशन में इंडिया वर्ल्ड पे नंबर 1 पे है, और G20 के बाद हम लोग दूसरे देशों में भी इसको लेके जा रहे हैं। तो आप लोग भी इसको इस्तेमाल कीजिए। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो मोबाइल नहीं है, वो सबसे बड़ा ताकत आपके पास है। प्लीज यूज इट। नेक्स्ट, ये सचेत है, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ऐप है। कोई भी खतरा आपके पास होगा, आप इस ऐप में देख सकते हैं। आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपके पास खतरे की वार्निंग आएगी, चाहे फ्लड हो, थंडरस्टॉर्म हो, कोई भी खतरा हो, वो आपको बताता है। आजकल आप लोगों के पास SMS आता होगा, थंडरस्टॉर्म आने वाला है। वो भारत सरकार का पहल है, सचेत का पहल है। कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल भारत सरकार ने कमीशन कर दिया है। कभी अमेरिका में हम लोग सुनते थे कि 911 होता है, कुछ होगा इमरजेंसी तो दबा दो। नेक्स्ट प्लीज।
आपके लिए भारत सरकार ने बनाया 112। मैं चाहूंगा यहाँ जितने लोग हैं प्लीज डाउनलोड 112 इंडिया। आपको पुलिस चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, चाइल्ड हेल्पलाइन चाहिए, विमेन हेल्पलाइन चाहिए, वो अवेलेबल है। और अगर आपका फोन बंद हो जाता है, आप कहीं फंस जाते हैं, तो आपको ढूंढा जा सकता है। 112 इंडिया, प्लीज डाउनलोड 112 इंडिया। और अगर आप डॉक्टर हैं, आप वॉलंटियर हैं, तो आप उसमें भी रजिस्टर कर सकते हैं। सरकार का जो मान्यता है, आप देखते होंगे 108 एम्बुलेंस गाड़ी खड़ी रहती है, 112 नंबर पुलिस वाले खड़े रहते हैं, वो आपके पैसे से आपके लिए खड़े हैं। प्लीज यूज इट। घर में गैस में प्रॉब्लम हो गया, प्लीज प्रेस इट। आप जस्ट प्रेस करेंगे, आपके पास तुरंत कॉल आएगा, पुलिस या इंडियन वाला पहुंचेगा कि आपके पास क्या प्रॉब्लम हो गया। तो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल ऐप एंड इट इज फंक्शनल ऑल ओवर इंडिया। आप कहीं भी जाएंगे, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट, ESG जिसकी मैं बात कर रहा था, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। आज हर इंसान से लेके ऑर्गेनाइजेशन को ESG को फॉलो करना है। जब तक आप एनवायरमेंट के साथ, अपने सोशल सामाजिक परिवेश के साथ अपने आप को उस तरीके से रेगुलेट नहीं करेंगे, तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब लगातार निरंतर बिना बाधा के विकास की राह पे नहीं चल सकते। ये चीजें फैंसी दिखती होंगी, लेकिन जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को आदत हो गया AC में रहने का। इस साल गर्मी में मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि हमारा जो घर है बसंतपुर में बहुत अच्छा है, हम AC इस्तेमाल नहीं करें। हमने वाकई नहीं इस्तेमाल किया और दिल्ली में 3 महीने हमारा बिजली का बिल 0 आया। तो ये मन की बात है कि यार AC के सामने ऑन कर देते हैं, सामने टीवी है चला देते हैं, उससे क्या रेडिएशन निकलता है, क्या एनर्जी कंजम्पशन होता है। आप उस छोटे से 10 फीट या 12 फीट का कमरा में आराम से तो हैं, जो चारों ओर बाहर गर्मी निकलती है, कभी सोचा है आपने? तो प्लीज यूज इट ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी। नेक्स्ट, ये काले बादल, द क्रिमिनल इज दिस ब्लैक क्लाउड। प्लीज अंडरस्टैंड, ये ब्लैक क्लाउड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, एक और बात, ये जो बिजली गिरने का मैंने महीनावार दिखाया है, जनवरी से लेके दिसंबर तक, हर इलाके का ये फ्रीक्वेंसी अलग होता है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है। हर स्टेट को हम देते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का हमारे पास है, ग्राम पंचायत लेवल का हमारे पास है। नेक्स्ट, अभी पूरे इंडिया को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा है। जो लाल वाला है 260 डिस्ट्रिक्ट, वो मोस्ट लाइटनिंग प्रोन डिस्ट्रिक्ट है। जो ग्रीन वाला है वो मीडियम है और जो लो है वो येलो में है, जिसे 132 है। नेक्स्ट, ये क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट इंडिया में हुआ है, जो जितना डार्क है उस पर ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम है इंडिया का, अनसेफ लिविंग कंडीशन एंड अनसेफ वर्किंग कंडीशन। नेक्स्ट, भारत सरकार एक योजना ला रही, नेशनल लाइटिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट, और ये टोटल कम्युनिटी सेंट्रिक है, पब्लिक को लाइटनिंग के बारे में जानकारी देना। हेलो दोस्त, आपके लिए आया हूं, सुन लो यार। आज गांव में किसी की लाइटनिंग से डेथ होती है या वो लाइटनिंग लगता है, उसको जमीन में गाड़ देते हैं, कोई गोबर लगा देता है, कोई कुछ कर देता है। सॉरी, उसको बिजली का करंट लगा है, उसको खुले में रखिए और उसे जो नॉर्मल इलेक्ट्रोक्यूशन का ट्रीटमेंट है वो दीजिए। तो कंप्लीट प्रोग्राम एज पर डायरेक्शन ऑफ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम लोग पूरे प्रोग्राम का नाम बदल दिया, नेशनल लाइटनिंग सेफ्टी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, और सारे कंपोनेंट्स आप लोगों को हम उस पर दे रहे हैं। नेक्स्ट, ये 5 कंपोनेंट है। रिस्क असेसमेंट गांव के लेवल पे, अभी आप गांव में रहते हैं, लाइटनिंग कहां होता है आपको पता चलना चाहिए।
जैसे पहाड़ का चोटी है, तालाब का किनारा है, नदी का किनारा है, ये सारी जगह आपको पता होनी चाहिए। खुला खेत है, वहां पे लाइटिंग का असर ज्यादा होता है। नेक्स्ट, ये फेज 1 में हम लोग 50 डिस्ट्रिक्ट लेके चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के 3 डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये बिजली बनती कैसी है ये आप जरूर समझिए। सूरज उगता है, गर्मी होती है, भाप उठता है, बादल बन रहे हैं, उसके अंदर चार्ज डेवलप होता है और फिर चार्ज आसमान से जमीन पे आता है। नेक्स्ट, ये जो चार्ज का फ्लो होता है, नेगेटिव चार्ज नीचे की ओर आते हैं, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर जाते हैं। लेकिन जब बादल नीचे होते हैं तो बादल घूमते हैं, तो हो सकता है आपको पॉजिटिव चार्ज भी मिले और नेगेटिव चार्ज भी मिले। तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव बिजली दोनों से बचाव करना है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये बता दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट, इससे पहले पहले बिजली गिरती है तो दो तरीके से गिरती है। एक तो ऊपर से सीधा आपके ऊपर गिरेगा और फिर चारों ओर फैलता है। जो सीधा डायरेक्ट गिरता है उससे कम लोगों की डेथ होती है, ज्यादा मौत होती है जो चारों ओर फैलता है। नेक्स्ट, अगर आप इसको देखें, पेड़ के ऊपर बिजली गिर रही है, जिस पेड़ के ऊपर गिरी अगर उसको टच करेंगे तो सबसे ज्यादा वोल्टेज वहां पे होता है। ये वोल्टेज 2 से 3 लाख एम्पियर के बीच में होता है। हम लोग घर में 30 एम्पियर इस्तेमाल करते हैं। गिरने के बाद ये चारों ओर फैलता है, आप देख रहे हैं सर्कल में फैल रहा है। जो चारों ओर फैलता है उसको ग्राउंड करंट कहते हैं। और दो स्थान के बीच में अलग अलग करंट का लेवल होता है। जैसे मैं खड़ा हूं, मेरा बायां पैर दायां पैर अगर अलग अलग है, स्टेप के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको स्टेप वोल्टेज कहते हैं। जितना आप इसको चौड़ा करेंगे उतना ज्यादा वोल्टेज होगा, उतना ज्यादा आपको करंट लगेगा। जानवर हैं, उनका 4 पैर होता है, स्टेप वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, वो जंप करते हैं और वो मरते हैं। बचने का इलाज है आप दोनों पैर इकट्ठा रख लीजिए, आपको करंट नहीं लगेगा और बैठ जाइए। जो बिजली से आवाज होती है, कान के पर्दे फटने का चांस है वो नहीं होगा। और चूंकि बिजली सबसे ऊंचे स्थान पे स्ट्राइक करती है, आप बैठेंगे तो आप छोटे हो जाएंगे, आप पे स्ट्राइक नहीं करेंगे और वर्टिकल से भी आप बचेंगे और जो चारों ग्राउंड करंट है उससे भी बचेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये विज्ञान समझना है कि क्यों बिजली से लोग मरते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इसे चलाना। ये इंडिविजुअल एक्शन प्लान है। हर आदमी को अर्ली वार्निंग जरूर पता होना चाहिए, डूज एंड डोंट जरूर पता होना चाहिए और जहां भी आप लाइटिंग अरेस्टर या कंडक्टर जरूर लगाएं। नेक्स्ट प्लीज, लाइटिंग इन वेस्ट बंगाल, ये पीछे ये पिछले 4 साल का है। वेस्ट बंगाल में 4 जोन है लाइटिंग के। जो हमारा कोस्टल जोन है उसके लिए अलग लाइटिंग का है। ये जोन पे झारखंड, छोटा नागपुर, प्लेटो का इम्पैक्ट रहता है, तो यहाँ पे लाइटिंग जोन अलग है। सेंट्रल वेस्ट बंगाल में लाइटिंग का ट्रेंड अलग है और जो हिल एरिया है आपका नॉर्थ बंगाल, उसका अलग है। तो ये चारों पैटर्न फ्रीक्वेंसी आपको समझना जरूरी है। बंगाल में बार बार बोलता हूँ, इज नॉट अ स्टेट, बंगाल इज अ कंट्री। यहाँ पे हर चीज है जो एक कंट्री के पास होना चाहिए और इसका जो लाइटनिंग क्लाइमेटोलॉजी है वो भी अलग है। नेक्स्ट, ये जो लाइटिंग का ट्रेंड है, कंटिन्यूअस इंक्रीज है लाइटिंग। नेक्स्ट, ये जो डेथ का नंबर है आप देखिए, कंटिन्यूअस लास्ट 20 इयर्स का है। 2001 में 63 लोग मरते थे, 200 से ऊपर जा रहे हैं और ये वो डाटा है जो हमारे पास आता है। ज्यादातर सरकार से पूछेगा तो बोलेगा 50-60 मरा है, पुलिस के पास जाइएगा तो बोलेगा 100 मरा है। एक्चुअल में डेथ इससे भी ज्यादा है।
क्योंकि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, नील, सैनी जी, इस तरीके के लोग, ये लोग हमें फीडबैक देते हैं कि यहाँ मरा, इसको सरकार से मिला पैसा, उसको नहीं मिला। एक आदमी के मरने पे सरकार 4 लाख रुपए देती है। तो प्लीज रिपोर्ट इट, और खास करके मीडिया रिपोर्ट जरूर करा दीजिए। और मेरे आर्मी के फ्रेंड हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप जहाँ हो, अगर किसी को लाइटिंग लगी तो उस राज्य सरकार से 4 लाख रुपए आपका बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हम लोगों ने पर मिलियन डेथ का ट्रेंड बताया, 10 लाख आदमी के पीछे क्या है। ये बंगाल में मुश्किल से 0.23 के आसपास होता था, आज बंगाल में 10 लाख लोग पे कम से कम 5 लोग हर महीने लाइटिंग से मर जाते हैं। नेक्स्ट, राइजिंग ट्रेंड। तो मैं कोई डाटा नंबर करके नहीं, मैं आपको पूरा ग्रैनुलर दिखा रहा हूँ कि पर 1000 किलोमीटर पर 10 लाख कितने लोग पड़ रहे हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी हाई नंबर, और जब नेशनल या दुनिया का एवरेज है उससे कहीं बहुत आगे है। और इसका एक ही तरीका है बचाने का, लोगों को एजुकेट करना, जागरूक करना और बचने का तरीका बताना। कोई अपनी जिंदगी खोना नहीं चाहता, सब लोग इसको जीना चाहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मरने वाले लोग जैसा मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा गांव के होते हैं, किसान 75%, चिल्ड्रन 35%, लेडीज बाहर कपड़ा सुखाने के लिए तार लगाती हैं, अचानक दोपहर में लाइटिंग आया, वो बाहर दौड़ती हैं और कपड़ा खींचती हैं, उस तार पे लाइटिंग गिरती है, उनको स्ट्राइक करता है। तो कभी भी तार पे कपड़ा नहीं सुखाएं, और अगर थंडरस्टॉर्म लाइटिंग आ रहा हो बाहर नहीं जाएं प्लीज। पक्का मकान सबसे सुरक्षित स्थान। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। जिस इलाके में लाइटिंग गिरती है उस इलाके में बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट भी ठीक नहीं होता। ये एक अलग साइंस है, अलग टॉपिक है, बाद में बात करूंगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये इकोनॉमिक लॉसेस दिखा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये हम लोग जागरूकता के लिए वज्रपात सुरक्षा रथ चलाते हैं, ये गीत वगैरह भी करते हैं, और इन सारे चीज़ों में जो कंप्लीट एजुकेशन किया जा रहा है ये हैम रेडियो के माध्यम से किया जा रहा है। तो बंगाल में आज कोई भी एक्शन हो रहा है ये इनके थ्रू हो रहा है। ये जहाँ भी एस्पिट में पढ़ाते हैं वहाँ पे लाइटनिंग जरूर पढ़ाते हैं, स्कूलों में जाके प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। लाइटनिंग का जो टाइम है जनरली 4 बार आता है। एक तो काल वैसाखी 13 अप्रैल के आसपास, एक प्री मानसून जून के शुरू में, सबसे ज्यादा लोग जुलाई में मरते हैं, तो सबसे ज्यादा तैयारी उस वक्त की जरूरत है। और जो टर्मिनल मानसून अभी का समय, ये 4 वक्त जरूर तैयारी होना चाहिए। पूरा दुर्गा पूजा पंडाल में एस्पेक्ट, ऑस्कर, इनका पॉइंट न्यूज, ये सारा इंश्योर करते हैं कि लाइटनिंग का असर नहीं है, चाहे वो काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो। आजकल लाइटनिंग कभी भी हो जाती है क्योंकि गर्मी जहाँ बढ़ती है लाइटनिंग होती है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। कुछ नेचुरल साइंस होते हैं, जब लाइटनिंग होगी आप बाहर रहेंगे, आपका बाल खड़ा हो जाएगा, आपको गुदगुदी लगेगी, तो आपको पता चलना चाहिए लाइटनिंग होने वाला है। आसमान की ओर देखिए, ये वो ऐसी जगह है बोलपुर, रामनगर, जहाँ बिन मेघे बरसात, बिन मेघे लाइटिंग होता है, बिना बादल के लाइटिंग होता है। ये इसलिए होता है कि ये चार्ज लगातार डेवलप होता रहता है। यहाँ पे वाटर बॉडीज है, माइनिंग एरियाज है आसपास, तो जो चार्ज उधर बनते हैं वो इधर फ्लो करते हैं हवा के साथ साथ, और उस फ्लो के कारण जब बादल नहीं भी होता है तो कई बार लाइटिंग हो जाता है। उससे बचने का एक ही तरीका है दामिनी ऐप। दामिनी ऐप में देखिए, वो आपको अलर्ट करता है कि लाइटिंग होने वाला है, आप सुरक्षित स्थान पे जाएं। तो बीच में ये वज्रपात, उसका एक ही जवाब है, यूज लाइटनिंग ऐप दामिनी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। नाउ कमिंग टू द टॉपिक अर्थिंग। नेक्स्ट, 2 तरीके से करते हैं, वन इज वर्टिकल प्रोटेक्शन, सेकेंड इज लैटरल प्रोटेक्शन।
Vertical protection is done by installing lighting conductor or arrestor. Next. Three things are important. Common theory ये है, आसमान की बिजली को पकड़ के जमीन के अंदर कर देना या वापस आसमान में भेज देना। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक एयर टर्मिनल हो, जिसे त्रिशूल या EAC एमीटर कहते हैं, किसी भी तरीके का आप लगा सकते हो। उसको एक मेटल के पाइप से नीचे जमीन तक लाना है और प्रॉपर अर्थिंग करना है। अर्थिंग कम से कम 5 फीट गहरा जरूर होना चाहिए। उस इलाके में नमी होना चाहिए। उसको देखने से पहले आप जरूर देखिए आसमान से कितना मैक्सिमम बिजली आ सकता है और सॉइल रेजिस्टेंस कितना है। अगर रेजिस्टेंस कम है तो उसमें पानी डाल के रखिए, तो उसमें नमी होना बहुत जरूरी है। अर्थिंग का अलग अलग तरीका है। जो लोकल तरीका हम लोग गांव में सिखाते हैं वो ये है, सॉल्ट, चारकोल, नौसादर मिट्टी ये मिला के हम ये ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं। आजकल मॉडर्न जमाने में केमिकल अर्थिंग भी आता है। आपके पास पैसा है वो लगाइए। हमारे साथ सन ऑफ द सॉइल नागरुण गोस्वामी आए हुए हैं दिल्ली से। ये ऐसी डिवाइस बनाते हैं कि लाइटिंग को अर्थिंग भी कर सकता है या लाइटिंग को रिफ्लेक्ट बैक भी कर सकता है। तो वो हाई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है। प्लीज यूज इट। उन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर भी किया है। थैंक यू वेरी मच नवरुण। नेक्स्ट, पहले जो लाइटिंग स्ट्राइक होती थी वो 40 से 80 किलो एम्पियर तक की होती थी। आज जो लाइटिंग की स्ट्राइक हो रही वो 150 से 300 किलो एम्पियर, मतलब 1.5 लाख एम्पियर से 3 लाख एम्पियर तक का करंट आ रहा है। तो आप जब प्रोटेक्शन डिजाइन करते हैं तो वो देखिए जो आप डिवाइस लगा रहे हैं उसके लिए टेस्टेड होना चाहिए। अगर आप कमजोर मेटल लगाएंगे तो वो गल जाएगा और उसे फायदे की जगह नुकसान ज्यादा होगा, करंट ज्यादा फैलेगी और नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट, ये अलग मेथड है, फ्रैंकलिन रॉड मेथड, कोन मेथड। नेक्स्ट, ये EAC टर्मिनल है। नेक्स्ट, ये सिंपल लो कॉस्ट डिवाइसेस हम लोगों ने बनाया है जो हम लोग स्कूल वगैरह में लगाते हैं। नेक्स्ट, ये ध्यान रहे कि जब भी आप लाइटिंग अरेस्टर या कंडक्टर लगाएं तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे होना चाहिए, खास करके सोलर पे जहां लगा रहे हैं उससे ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट, ये लोग हैं ग्राम पंचायत लेवल पे जिनको आपको ट्रेनिंग देना है, जिनको आपको जागरूक करना है। सबसे ज्यादा मौत यहाँ होती है। नेक्स्ट, सेल्फी। यस, यंगस्टर्स जो जाते हैं वाटरफॉल पे, सी बीच पे, प्लीज डोंट टेक सेल्फी व्हेन देयर इज थंडरस्टॉर्म, देयर इज लाइटनिंग। इन केस ऑफ एनी रेन्स, डोंट टेक इट। देयर आर मेनी केसेस, गोवा बीचेस, जुहू बीचेस, आमेर फोर्ट, so many places. So please, even Gopalpur beach पे last year, 2 students from Barampur University, they succumbed to this. There was one case at Digha beach. So when there is rain, when there is thunderstorm at beach, please don't take selfie. Next, this is a 5-second rule. ये हमको पता है कि जो बिजली की गति है वो 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड होती है और जो आवाज की गति है वो 330 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो समय का अंतराल है, स्पीड में अंतर है, इसका लाभ लेते हुए ये 5 सेकेंड रूल है। अगर आसमान में बिजली चमक रही है तो आप गिनती शुरू कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। हम लोग गिनती गिनते हैं 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। 5 सेकेंड के बाद अगर आपको आवाज सुनाई दिया मतलब बिजली आपसे 1 माइल दूर है। अगर आपको 25 के बाद आवाज सुनाई दिया तो 5 माइल दूर है। अगर बिजली का चमक देखने के बाद आपने 50 तक गिन लिया और तब आवाज सुनाई देती है मतलब बिजली आपसे 10 माइल दूर है। इस समय का इस्तेमाल आप सबसे पहले अपने को पक्के मकान में सुरक्षित स्थान में ले जाइए। अगर खुले में हो, कुछ नहीं आसपास हो, तो जैसा मैंने बताया कुकड़ू पोजीशन लेके बैठ जाइए। अगर आपको पता है कि आपके घर के लोग कहीं बाहर हैं, उनको फोन करके अलर्ट करिए। लोग खेतों में काम कर रहे हैं, बाहर फुटबॉल खेल रहे हैं, उनको
अलर्ट कीजिए और उनको सेफ स्थान पे ले जाइए। तो ये नेचुरल सिस्टम है 5 सेकंड रूल। दूसरा रूल है 30 मिनट्स रूल। जब बिजली गिरती है उसके बाद 30 मिनट तक बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि 30 मिनट तक आसमान में बिजली का करंट रहता है और वो आपको लग सकता है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये जो हम लोगों ने बोला गांव का रिस्क असेसमेंट, पहाड़ की चोटी पे बिजली गिरती है लेकिन जो पहाड़ की तलहटी है वहां पे बिजली नहीं गिरती है, तो ये पहचानना जरूरी है। ये जो पहाड़ है पिछले वाले पे जाना, इससे पिछले, जब आप खेतों में काम कर रहे हो और अगर सवेरे आप देख रहे हैं बादल काला आ गया है तो पहाड़ के पूरब में काम मत कीजिएगा, क्योंकि पहाड़ के पूरब में बिजली गिरेगी। तो उस वक्त आप पहाड़ के पश्चिम दूसरे साइड में काम कर सकते हैं। वैसे ही अगर 12 बजे के बाद आप काम कर रहे हैं तो पहाड़ के पश्चिम में काम मत कीजिएगा, पूरब में काम कर सकते हैं, क्योंकि बिजली पहाड़ के पश्चिम में गिरेगी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये पोजीशन है लाइटिंग से पोजीशन। नेक्स्ट, मैंने बताया जब आप पैर चिपका के रखेंगे आप देखिए करंट सीधे जा रही है, आपके शरीर के अंदर नहीं आती है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आपका मकान, कार, बस सेफ है। घर का दीवार मत टच कीजिएगा, खिड़की दरवाजे बंद रखिए, आपके कार बस का दरवाजा बंद रखिए और उसका बॉडी को टच मत कीजिए, उसके अंदर रहिए। फुटबॉल मैदान सेफ नहीं है, उसको सेफ बनाने के लिए 2 कॉर्नर पोस्ट पे डायगोनली आप बढ़िया से लाइटनिंग कंडक्टर या अरेस्टर लगाइए, बीच में फुटबॉल खेलिए, नो इश्यू। नेक्स्ट नेक्स्ट, जब बिजली करे गर्जना पेड़ के नीचे कभी ना रहे। इंडिया में 70% लोग इसलिए मरते हैं। हम जा रहे होते हैं, कहीं थंडरस्टॉर्म आया, बारिश हुई, गाड़ी मोटरसाइकिल पैदल पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बच्चों का गर्मी में समर स्कूल होता है, 12-1 बजे लौटते हैं, थंडरस्टॉर्म हुआ, पेड़ के नीचे खड़े हो गए। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। लेडीज, इससे पहले वाले बताएं, जब बिजली गिर रही हो बाहर, घर में कपड़े बर्तन ना धोए प्लीज, वॉशिंग मशीन नहीं चलाइए। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। This year we have facilitated ASMET Oscar India with the Lightning Resilience Award, and they have been continuously maintaining zero death in their resilience. Thank you very much. I hand it over to Shiny